Hey students, welcome to our home learning support. And when I'm talking about home learning, with home learning you need discipline. You need discipline as if you have to be self-disciplined and you should be aligned with your discipline, desire, so that you can study well at home. So let's begin with our chapter. And before starting our chapter, I would request all of you to please sit straight. Your back must be straight. Sit straight and take 3 deep breaths. सीधे बैठिए और 3 गहरी सांसें लीजिए जैसे हम क्लास में करते थे. Sit straight and take 3 deep breaths. Okay, that's it. Okay, now let us start with our today's topic. So our today topic is number system. So in number system, let us start what all we will learn today. Let us take the learning objectives. कि आज हम क्या क्या सीखेंगे इस क्लास से. Learning objective for today is first, after today's session you would be able to understand what are natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. These are the 4 things will understand after today's class, and along with all the 4 things you can also tell which category of number belongs to which group, whether it is a natural number, whole number or integer, or it is a rational number. So this we will learn. So one by one we are going to take all these numbers. So let us start our session today. So types of number. ओके चलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में करूंगा. मेरे को रिक्वेस्ट आई है कि हिंदी में भी बताइए. सो टाइप्स ऑफ नंबर्स. अगर हम नंबर्स की बात करें जो सबसे पहले नंबर्स हैं दैट आर नेचुरल नंबर्स. हमने बचपन में जब अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी थी तो किससे करी थी? नेचुरल नंबर से स्टार्ट करी थी. अब ये नेचुरल नंबर बेसिकली होते क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक चलते? इन्फिनिटी तक. बच्चों इन्फिनिटी का मतलब आपको पता है? जैसे आपको पता है काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती. जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आसमान में तारे कितने, तो आप क्या बोलोगे? सर अनगिनत. तो सिमिलरली नंबर्स भी कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा आगे चलते रहते हैं. तो वो इन्फिनिटी तक चल रहे हैं. तो हम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहेंगे? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चल रहे हैं? इन्फिनिटी तक चल रहे हैं. ठीक है, एक चीज आपने ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक. Begins with 1 and goes up to infinity. Those are known as natural numbers. Okay, natural numbers को हम counting numbers कहते हैं. Counting number क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कोई भी चीज काउंट करते हैं तो हमेशा हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. We always start counting from 1. So let us take an example. For an example, these are the balls. अगर आपने काउंट करना होगा तो आप -1 या 0 से स्टार्ट नहीं करोगे. आप कैसे स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10 balls. So these are also known as काउंटिंग नंबर. इसलिए काउंटिंग, गिनती में ये हमारी मदद करते हैं, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. एंड अलोंग विद दैट अगर हम बताना चाहें कि नेचुरल नंबर क्या है तो हम उसको कुछ इस तरीके से बता सकते हैं. नेचुरल नंबर उन नंबर्स का ग्रुप है जो 1 2 3 4 और चलते रहते हैं और कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक चलते हैं. ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. तो अब जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी 1. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वी आर हैविंग इज 1 and the largest number is infinity because number never ends, they moves on. So now let us come to our second type of number, and the second numbers are whole number. Okay, चलिए अब whole numbers के बारे में हम जानते हैं. What are whole number? Whole number starts from 0 to infinity. Whole numbers क्या है? वो numbers जो कहाँ से start होते हैं? 0 से start होते हैं. यहाँ पे क्या हुआ? Natural number 1 से start हो रहा था और whole number कहाँ से start हो रहे हैं? 0 से start हो रहे हैं. Clear? बस इतना डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में. होल नंबर में 0 और इंक्लूड कर दिया है.
So what are whole numbers? Whole numbers are those numbers which starts from 0 to infinity. Okay, this is an example which we have given in front of you, 0, 1, 2, 3, and it goes on till infinity. So these are what? These are the whole numbers. Okay, if we consider a set of whole number as W, then अगर हम whole numbers को दिखाना चाहें, हम कैसे दिखा सकते हैं? Whole number are the group of those number which starts from 0 and goes up to infinity. These are group of those number which starts from 0 and goes up to infinity. 0 से start होता है और infinity तक जाता है. Clear? And the smallest whole number is 0. Clear? As if we are starting, whole numbers are starting with 0, so the smallest whole number would be the 0 and the largest whole number would be infinity. Difference between natural number and whole number. अगर difference पूछा जाए natural number whole number, so it is nothing. Whole number only includes 0. Whole number, what is whole number अगर पूछा जाए तो what is whole number? All natural number and 0 together are known as whole number. अगर natural number में 0 और include कर दिया जाए तो वो whole number है, और 0 हटा दिया जाए तो सारे numbers natural numbers हैं. Okay, we can say 0 and all natural numbers are whole number. 0 और सारे natural numbers are whole numbers. Okay, now we are going to do another kind of number that are integers. Okay, first we have done natural numbers, then whole numbers. Now we have come to integers. Now let us take what are integers. All positive whole numbers. First, जितने भी whole numbers हैं positive, 0 से start हो रहे हैं, 1, 2, 3 से लेकर infinity तक positive की तरफ चल रहे हैं जो, they are included in integers. ये integers में आते हैं. उसके साथ साथ all negative numbers which comes after 0. उसके बाद क्या बताया इन्होंने कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जो नंबर लाइन में 0 के बाद या फिर नंबर लाइन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, वो सारे नेगेटिव नंबर्स, मींस ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0 ऑल टुगेदर आर नोन एज इंटीजर. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर है, 0, अगर इन सबको इन टोटल लेकर लिख दिया जाए तो दे ऑल आर इंटीजर्स. अब इंटीजर्स को हम किस तरीके से दिखाएंगे? सपोज दिस इज अवर नंबर लाइन. क्लियर? एंड इन नंबर लाइन इन बिटवीन व्हाट वी आर हैविंग, इन बिटवीन वी आर हैविंग 0 एंड 0 के जो है राइट हैंड साइड में जितने नंबर है दोज आर पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर है नेगेटिव है. अब ये जो नंबर्स हैं ये किस तरफ चल रहे हैं आप ये भी देखिए. जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चल रहे हैं, और जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ चल रहे हैं. कि नंबर्स दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे एरोज दिखाए हुए हैं, एक तरफ पॉजिटिव में और एक तरफ नेगेटिव में. एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ग्रेटर होता है, और नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना स्मॉलर होता है. नेगेटिव वैल्यू का नंबर, अगर सपोज ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमने नंबर लाइन में, तो पॉजिटिव में अगर हम देखें तो 6 जो है वो 4 से बड़ा है, बट अगर हम नेगेटिव में जाए तो -6 जो है वो -4 से छोटा है. नेगेटिव की तरफ आप जितना चलते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी कम या फिर स्मॉलर मानी जाती है, और पॉजिटिव की तरफ जितना चलते जाते हैं उतनी वैल्यू बड़ी है. सपोज अगर हम एक एग्जांपल में आप लोगों से पूछता हूं, लेट अस मेक दिस सेशन मोर इंटरैक्टिव. -1 and -5. -1 and -5. ओके, सूरज प्रताप आप रिप्लाई करेंगे. आप अपने आप को अनम्यूट कर लो सूरज प्रताप. -1 and -5, which is the smallest number? -5. -1 and -5. -5 is smallest. Okay, very good, great going. Okay, now let us come to. Thank you, sir. शंकर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. Okay, Shankar, can you tell me 1 and -1, which is the smallest number? Okay, 1 and -1, which is the smallest number? Can you please repeat? Okay, very good, great. You are right. You can mute yourself. आप mute कर सकते हैं अपने आप को.
तो आप दोनों ने जो है आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स है, जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाएंगे वो नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा और उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर उससे बड़े होंगे। Here what our number line tells. Now what are integers? Integers are set of whole numbers along with okay. Integers are set of whole numbers. सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Negative numbers. Clear? Is that clear? They are the whole numbers. Whole numbers means 0 to infinity. What all numbers are there? They are also included in integers, and all the negative numbers, they are also included in integers. So these are known as integers. So now the whole numbers and all negative numbers up to minus infinity. Okay, clear? So here the numbers are going to positive infinity on positive side of integer, and on the negative side of integers the numbers are going to माइनस इन्फिनिटी। तो अब जब ये कंडीशन है तो इसमें अगर हम पूछें विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर, तो जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा दैट वुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव साइड में जो इन्फिनिटी है दैट वुड बी द लार्जेस्ट इंटीजर। एंड इफ आई एम गोइंग टू आस्क द स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। जो नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रहा है दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, नाउ 1 upon 2 is which kind of a number? Okay, so this is a question time. 1/2 किस टाइप का नंबर होगा? Whether it is a natural number, whether it is a whole number, or whether it is a integer. अगर हम 1/2 से बारे में पूछे कि किस टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो इसका आंसर ये है कि ये इन तीनों में से कोई सा भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पर हम सीखते हैं नए टाइप के नंबर जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर इन अ फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ऑब्लिक के फॉर्म में आ जाते हैं। 1/2, 2/3, 5/6, 6/7, 99/100, -5/-7, 6/-5, जितने भी नंबर्स ऑब्लिक में आ रहे हैं, these are what? These are known as rational numbers, those which can be written in the form of p/q. ओके, चलिए अब हम p/q के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। p is a numerator, जो ऑब्लिक के ऊपर की साइड आ रहा है दैट इज व्हाट? दैट इज अ न्यूमरेटर। जैसे 1/2 में 1 इज अ न्यूमरेटर, 2 इज अ डिनोमिनेटर। जो नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्लिक में दैट वुड बी डिनोमिनेटर। तो वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q, बट p/q में रिप्रेजेंट करेंगे, those are known as rational number, but there is one important condition which you have to remember. अब important condition क्या है? p and q की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये हम बताते हैं। p and q are integers, p and q integer होने चाहिए, and along with that what is the difference? q should never be equal to 0। q जो है it should never be equal to, जो आपका डिनोमिनेटर है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट इज अ मेन कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं। जो q की वैल्यू है दैट वुड नेवर बी 0। सो एनी नंबर व्हिच इज इन अ फॉर्म ऑफ p/q आर रैशनल नंबर्स in which p can be any integer from -infinity to +infinity, and q could be any integer from -infinity to +infinity, but it can't be 0, but वो 0 नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया p/q का फॉर्म है, p की जो वैल्यू है -infinity से लेकर +infinity तक कोई भी हो सकती है। इवन p could be 0 also, p की वैल्यू 0 हो सकती है, बट q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे को जो बचपन में बताया गया है, अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो इट इज
not defined. Clear? 0 ऊपर आ सकता है. Anything if 0 अगर ऊपर आएगा तो then the value is 0. तो आंसर 0 होगा, but nothing could be divided by 0. So it is not defined in mathematics. So I am repeating again, the value of p, जो p की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, मीन्स p कोई भी इंटीजर हो सकता है, -3, -4, -782, -482, 432, 38, 39, कोई भी इंटीजर हो सकता है. q कोई भी इंटीजर हो सकता है 0 को छोड़कर. Then it is what in form it is a rational number. Clear? तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, फॉर्म क्या है, p ऑब्लिक q, एनीथिंग विच इज कमिंग जिसमें बटे का निशान आ रहा है 1/2, 3/4, 5/6, बट नीचे जो है, नीचे की तरफ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू मोर ऑन रैशनल नंबर्स. हम रैशनल नंबर्स के बारे में और कुछ जानकारी निकालते हैं. अब ये जो नंबर्स है 5, -7, 8, -11, 12, ये क्या रैशनल नंबर्स है? p ऑब्लिक q के फॉर्म में तो है नहीं, तो है क्या ये रैशनल नंबर? जो लोग कह रहे हैं दे कैन गिव द थम्स अप, जो लोग कह रहे नहीं है दे कैन गिव द थम्स डाउन. ऐसा कर सकते हैं हम. अगर आपको सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन. दे दो. अगर आपको लगता है रैशनल नंबर, प्लीज क्वेश्चन रिपीट सर. इट्स अप टू यू, आप जैसा कहेंगे हम वो मानेंगे, बट प्लीज मेक दिस फोरम रिपीट द क्वेश्चन. मोर कम्युनिकेटिव. ओके, चलिए ठीक है. अब 5, -7, 8, -11, 12, are they rational numbers? Okay, let us do. Yes, they are rational numbers. Why? Because 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं. We can write 5/1. 5/1 क्या है? 5 है क्योंकि हमारे को बताया गया है किसी के नीचे ऑब्लिक में 1 डाल दो, मतलब कोई चीज 1 से डिवाइड होती है तो दैट इज व्हाट, दैट इज नंबर इटसेल्फ. वो नंबर आ जाता है. 5 को 1 से अगर डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 5 आएगा. तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं. -7 को हम कैसे लिख सकते हैं? -7/1. 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8/1. -11 को कैसे लिख सकते हैं? -11/1. और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12/1. तो मीन्स ये जितने नंबर है या जितने नंबर जिनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उनके नीचे भी आप क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो, और 1 डाल के वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर. तो इस एक्सरसाइज का बेसिक जो है, बेसिक आइडिया ये है, ये एक्सरसाइज करने का हमारा, कि ऑल इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स हैं, इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम -infinity टू +infinity, ऑल इंटीजर्स. All integers are what? All integers are rational numbers. जितने integers हैं वो सारे क्या है? हमारे rational numbers हैं. Because हम सबके नीचे upon में 1 डाल. Integers are what? Positive and negative number and +0. और सबके हम नीचे upon में हम क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं. So all integers are rational numbers. So this denotes that all integers are rational numbers. So अब हम आगे चलते हैं. इसके साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द नंबर्स. अब इन नंबर्स, जो हमने नंबर्स सीखे हैं, फर्स्ट वी हैव लर्न नेचुरल नंबर, देन वी हैव डन होल नंबर, आफ्टर होल नंबर्स वी हैव डन इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद में जो हमने किया दैट आर रैशनल नंबर्स. अब व्हाट रिलेशनशिप वी कैन एस्टैब्लिश, हम इन सबको रिलेशनशिप में लाते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं. So how we can show the relationship between all of them? Let us start with natural number. हम natural number से start करते हैं. Natural number are those number, मैंने आपको बताया है, even those who have joined late, they can also do a recap. Numbers starting from 1 to infinity are natural numbers. जो numbers 1 से start हो रहे हैं और कहाँ तक चल रहे हैं? Infinity तक चल रहे हैं. Those are what? Those are natural numbers.
ओके, एंड देन होल नंबर क्या है? होल नंबर इज 1 to infinity जो नंबर चल रहा है उसमें जब हम जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर। क्लियर? मतलब नेचुरल नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर का सेट बन जाएगा वो। क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity and whole numbers are those all natural number and zero together are known as whole number। जितने भी नेचुरल नंबर है और उनमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। इंटीजर क्या है? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स सारे होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, सारे होल नंबर। होल नंबर क्या है? जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितने पॉजिटिव नंबर है एंड नेगेटिव नंबर्स, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे को कौन सा नंबर मिल रहा है? दोज आर नोन एज इंटीजर्स। दोज आर इंटीजर्स। एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू कम टू अनदर सेट ऑफ नंबर। वो क्या है? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स क्या है? सारे इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक तो पहली बात है क्या? सारे इंटीजर्स है, जितने टोटल इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। उसके बाद वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में, जिसमें q जो है is not equal to 0, all the numbers which are in the form of p upon q and q is not equal to 0, those are what? Those are rational numbers। q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो के ऊपर और जीरो से कम, मींस नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बस जीरो नहीं हो सकती। तो q कैन बी एनी ऑफ द इंटीजर, q की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है जीरो छोड़कर। सो दोज आर व्हाट? दोज आर रैशनल नंबर्स। अब अगर हम देखें इन फोर नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले हमने किया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? एक थोड़ा सा बाकियों के हिसाब से छोटा ग्रुप है नंबर्स का, 1 टू इंफिनिटी। होल नंबर में क्या हमने ऐड कर दिया? जीरो ऐड कर दिया। जब किसी नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो मिला दो और तो वो बन जाते हैं होल नंबर। फिर ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक जीरो आया उसमें। इंटीजर्स में क्या आया? जीरो टू इंफिनिटी तो होल नंबर्स के उन्होंने लिए ही लिए, साथ में क्या करा आपने? नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, तो ग्रुप को और बड़ा कर दिया। क्लियर? एंड इन लास्ट वन वी आर कमिंग टू रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में क्या हुआ? सारे इन्होंने इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आ गए, उसके साथ साथ वो नंबर्स और आ गए जो किस फॉर्म में? p ऑब्लिक q के फॉर्म में, वो नंबर और आगे। तो धीरे 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 जो इनका जो ग्रुप है वो बड़ा होता जा रहा है नंबर्स का। क्लियर? तो फर्स्ट आर नेचुरल नंबर, देन देयर आर होल नंबर्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड जीरो, एंड जब होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर ऐड कर देते दे बिकम इंटीजर्स, एंड वन ऑल इंटीजर्स एंड नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to, जहां पे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो those are what? Those are rational numbers। okay, so now this is a relationship which we have established, and the most important thing which we are going to do now is the mind map। Mind map is the most important thing because humans are having one feature कि हेलो हम सर। क्या करते हैं, हम जो अपनी पिक्चर और फोटो के फॉर्मेट में चीज होती है ना, उसको हम जल्दी कैप्चर करते हैं, हमारा दिमाग उनके साथ ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। तो आज का जो सेशन है उसका मैंने आपके सामने एक माइंड मैप रखा हुआ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? अब इसमें क्या क्या बताया हुआ है? इसमें सबसे पहले जो सबसे नीचे और जो सबसे छोटा सर्कल है दैट इज ऑफ नेचुरल नंबर। उसमें नेचुरल नंबर्स लिखे हुए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक चल रहे हैं? इंफिनिटी तक चल रहे हैं। अब होल नंबर, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा जो सर्कल है वो होल नंबर का सर्कल है, उसमें क्या आ गया? उस सर्कल के अंदर एक तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, प्लस होल नंबर का क्या आ गया? जीरो आ गया। तो होल नंबर आर व्हाट? होल नंबर कंटेन जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। उसके बाद जो हमारा थर्ड सर्कल है माइंड मैप का, दैट इज ऑफ इंटीजर। क्लियर? अब इंटीजर का जो थर्ड सर्कल है उसमें क्या आया? होल नंबर्स आ गए सारे और नेगेटिव नंबर्स आ गए सारे, कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक जो चल। और लास्ट में जब हम रैशनल नंबर के सर्कल पे आते हैं तो रैशनल नंबर के अंदर कौन से? सारे नंबर्स आ जाएंगे। रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आ गए, प्लस कौन से नंबर? जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज आर नोन एज रैशनल नंबर। तो ये एक आपके सामने एक माइंड मैप, एक पिक्चर फॉर्मेट में आज के पूरे सेशन को
मैंने आपके सामने रखा है, तो इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि आज के सेशन में आप लोग क्या सीख के जा रहे हैं। ओके, एज वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके जो क्वेश्चंस हैं आई विल आंसर देम पर्सनली आल्सो। As we are going to progress further in our session, let us take some practice time करते हैं। State whether the following numbers are natural number, whole number, integers or rational number. So here is the question. आपने ये बताना है कि ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है। ओके, क्लियर? तो अवर फर्स्ट नंबर इज 5000। 5000 नेचुरल नंबर है क्या? अच्छा, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टिल इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। दोज आर व्हाट? दोज आर नेचुरल नंबर। तो 5000 तो इसके बीच में आएगा, सो ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल नंबर। यस। इज इट अ होल नंबर? होल नंबर होगा। जो नंबर नेचुरल नंबर है वो ऑटोमेटिकली होल नंबर होगा, बिकॉज व्हाट आर होल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। सो दिस इज अ होल नंबर आल्सो। यस, क्लियर। 5000 is integer also because it is a positive, because all positive and negative numbers, और ये क्या है? It is a positive number, so it is a integer also. Is it a rational number? ये क्या rational number है? बताइए। 5000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5000 upon 1. Yes. 5000 upon 1 is what? It is 5000 only. Yes. Anything upon 1 is the number itself. So yes, of course, it is a rational number also. So 5000 is a natural number, it is a whole number, it is an integer, and it is a rational number also. Okay, let us take another number, that is minus 339. Okay, now Shankar will answer. Shankar, is this number a natural number? No. Okay, no, Shankar, you are absolutely right. ये natural number नहीं है, because natural number starts from 1 and it contains all positive numbers till infinity. Natural number 1 से start होते हैं और सारे positive numbers आते हैं, तो of course this is not a natural number. No. Okay, Suraj Pratap, can you tell me whether it is a whole number? No. No, very right. No, it is not a whole number, because whole number are set of all positive numbers and zero. Zero और सारे positive numbers होने चाहिए. So it is not a whole number. Great. Okay, Yash. Yash, please unmute your. Yes, sir. Yes. अब बताइए, minus 339 is the integer? No, sir. है ये? हाँ जी। No, sir. No, sir. अच्छा, चलिए ठीक है। minus 339 is a integer. It is a integer. इंटीजर है, because क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन दोनों को मिला के क्या बनता है? इंटीजर बनता है। तो ये कौन सा नंबर है? नेगेटिव Integer. यस, नेगेटिव नंबर है ना? नेगेटिव। Yes, sir. Is negative number. नेगेटिव नंबर है, और Negative नेगेटिव number. नंबर किस में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे। क्लियर? Integer में. Yes, sir. अगर किसी को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, कुछ है, वो बाद में मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, सो minus 339 is an integer, because it is a negative number and all positive and negative numbers are integer. rational number है क्या ये? ओके, साहिल आप बताइए। हाँ जी। Yes, sir. Okay, absolutely Yes, sir. right. Minus 339 is a rational number. Why? Because minus 339 could be written as minus 339 upon 1. और किसी भी चीज को हम upon 1 लिखते हैं तो that is number itself. So it is a rational number. Okay, great going. Good, very good. Okay, now let us come to another question. 1 upon 2. 1 upon 2 is a which kind of number? 1 upon 2 is a which kind of number?
Okay, it is a rational. अच्छा, natural number है नहीं है? Let us start from that. Natural number है नहीं है? Okay, हम जाते हैं. सौरभ. सौरभ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. ओके, हाँ सौरभ बताइए कि ये जो नंबर है 1/2 इट इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर है क्या ये? नो सर. ओके, नो सर. ऑफ कोर्स इट इज वेरी राइट. आप सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. 1/2 is not a natural number because it is in the form of p/q. Clear? So it is not a natural number. It is not a whole number also. Whole number में भी नहीं आता. It is not a integer also. Integer भी नहीं है. Why? Because it is in the form of p/q. So it is what? It is a rational number. Rational number. ऊपर आते हैं हम. Last. जीरो नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. जीरो होल नंबर है. यस, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इज अ होल नंबर. जीरो एक इंटीजर है. यस, इट इज अ इंटीजर. ओके, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, इंटीजर में सारे नंबर्स हैं उनके नेगेटिव होते हैं, पर जीरो एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल है, जिसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता. सो इट इज अ न्यूट्रल नंबर. एंड व्हेन वी कम टू रैशनल नंबर, जीरो क्या एक रैशनल नंबर? ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं. 0/1 is equal to 0. Clear? Okay, so this was our practice time, and आप इसकी screenshot ले सकते हैं. These are some questions for your practice. State whether the following numbers are natural number, whole number, integer or rational number. In support, give your reasons also. आपने पहले तो ये बताना है कि whether these numbers are natural number, whole number, integer or rational number. उसके साथ साथ along with that in support you have to give the reason also. If they are so, then why they are so. Okay, clear? You have to give the reason also. So you can take a snapshot of this screen. Okay, sir. Okay, done. Yes, sir. Okay, you have taken the screenshot of this screen. That is good enough. So this brings us to the end of today's session. आज के सेशन के हम लास्ट में आ चुके हैं. Clear? And hope that you have understood the chapter well, and thanks for giving attention. And please student, those who are unable to understand या किसी को कोई डाउट रह गया है, they can call on our WhatsApp number, or they can even message on the WhatsApp number. We are always there to help you. And along with that, we are going to send you assignments also, and we are going to send the hard copy of this study conference or study meeting which we have taken just now. So please stay safe. अपना और अपने घर में सभी का खूब ध्यान रखिए. ढंग से रहिए, खूब मन लगा के पढ़ें. क्लियर? और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं. और आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, I am always there for you. You can just message me, text me, or you can even call me. I am always there for you. And please stay safe, stay at home, take care, and please जो assignment के questions हैं वो जरूर कर लीजिएगा. ठीक है? And Yes, sir. टाइम हम और ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर्स लेकर आएंगे. आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया है. क्लियर? Thank you, sir. Then Yes, sir. Thank you, sir. bye bye from my side. Take care. Bye beta. Thank you, sir. Okay, beta.